Very good. Very good. श्रीमती मीनाक्षी लेखी। कभी दूसरों पर तनकीद मत करिए, तनकीद करने से पहले आईना अपने सामने रखिए। ऑनरेबल स्पीकर मैम, आज मैं आप सबके सामने खास तौर पे जो आईना भेजने की बात कह रहे हैं उनको आज आईना दिखाने का ही काम करने जा रही हूँ। और जब मोहम्मद सलीम साहब ने आज जो कुछ वाकया इस संसद में हुआ, ठीक उसी तरीके की डिबेट देश में शुरू की जा रही है। और वही मैं आपके माध्यम से देश को बताना चाहती हूँ कि कहीं पर कोई खबर छापी जाती है किसी अखबार में, किसी मैगजीन में, किसी न्यूज़पेपर में, और उसके बाद किसी नेता का बयान आता है और उसके ऊपर एक माहौल को गरमाया जाता है। ठीक वही चीज़ वो लोग जो कि पिछले एक डेढ़ बरस में किसी चीज़ के बिना घूम रहे हैं, जिनके रहते उनके हाथ में सब कुछ होता था, ज़माना उनका होता था, और इसी वजह से लोकतांत्रिक तरीके से जीती हुई सरकार के प्रति असहिष्णुता इनके मन में है, और वही असहिष्णुता का माहौल इस देश में बना रहे हैं। और ये बातें तथ्यों से साबित होती हैं, क्योंकि मेरे जैसे लोग तथ्यों से हटकर रेटरिक में नहीं बोलते। और तथ्य जो हैं वो मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। पहला तथ्य, जब ये कहा जाता है कि इस देश के अंदर असहिष्णुता का माहौल बढ़ रहा है, तो पहला तथ्य है, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अ टोटल ऑफ 2715 communal incidents occurred in the country from the year 2011 to 14. On an average, about 57 communal incidents per month in last 4 months. And 85% of these incidents occurred in just 7 states. All of them were either ruled by the Congress or the non-BJP parties. ये तथ्य है। तथ्य ये है कि incidents of communal violence have actually declined during the past 14-18 months, because this year has recorded 644 cases in the year 2014 as per information available, and this was so stated even in the Rajya Sabha by the Minority Affairs Minister. Madam Speaker, numerous writers, filmmakers and so-called intellectuals have returned their awards in the past few weeks to protest against the growing intolerance in the country. I'm sure there are a lot of people who are actually worried about this atmosphere which is sought to be created in this country and who have not returned their awards. And according to me, these were probably the rewards for political considerations and not the awards which were genuinely sought. I would like to assure them that India is not becoming intolerant, and there is absolutely no data to support this particular fact. In fact, all this atmosphere is sought to be created to malign the image of a democratically elected government, and that is why I call them intellectual mercenaries. They are intellectual mercenaries because they are not concerned about how they are tarnishing the image, how they are affecting the relationships between communities, and how India needs to progress and get ahead on the ground of poverty and fight against poverty. Our Prime Minister, in whose name a lot of bashanbazi has happened, Shri Narendra Modi has reiterated his commitment to the holistic development time and again, and spoken out against violence of any kind. And his rally in Bihar, he affirmed his stance on development and need for communal harmony, while stating we must decide whether Hindus and Muslims should fight against each other or against poverty. Only peace and goodwill can take this country forward. This is our commitment to communal harmony of this country. And it is in this stance that repeatedly our government has maintained Sabka Saath, Sabka Vikas. And if
people in the opposition vouch by such a committee report, they should also vouch by the status of Muslims in Gujarat, where the then Chief Minister, how hard he worked for Sabka Saath and Sabka Vikas. Because these people have run the government in the British style, divide and rule. The formula is very simple. Divide the majority community into castes and polarize the minority communities in the name of religion. And that is exactly what they are working on. When these people remember and vouch by the Constitution, in the name of Constitution, in the name of law and order of this country, and they want to debate cow slaughter in this country, they forgot what the directive principles have to state. They forgot how many states in this country allow cow slaughter and how many states do not allow cow slaughter. And this country and this Constitution has given the right to amend even that law. हिंदुस्तान के अंदर 29 में से, क्योंकि ये डाटा तब था जब 30 राज्य नहीं थे, 29 में से 21 राज्य ऐसे हैं जहां पर काउ स्लॉटर बैन है, और ये तब से बैन है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में नहीं थी और प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी नहीं थे। आंध्र प्रदेश में जो प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर एंड एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट जिस साल में पास हुआ वो साल 1977 था, और वो साल तब था जब कांग्रेस के पास 219 सीटें थी। 287 सीटों में से 219 सीटें कांग्रेस के हाथ में थी, और तब कांग्रेस ने ये कानून पारित किया। जम्मू और कश्मीर के अंदर जब वेणुगोपाल जी बोल रहे थे एंड मोहम्मद सलीम साहब कह रहे थे कि उसको धमकी दिया असेंबली के अंदर काउ स्लॉटर के लिए, वो भूल गए कि 1932 से उस राज्य का वो कानून है। एक कानून मानने वाला देश जहां पर संविधान प्रमुख दस्तावेज है, क्या इस देश में और खास तौर पर जीते हुए प्रतिनिधि लोगों के बीच में ये माहौल बनाना चाहते हैं कि राज्य का कानून भले ही कुछ हो, आप राज्य के कानून को तोड़ें? क्या ये देश में एनार्की नहीं होगी? आपको अधिकार है कानून के तहत उस राज्य के कानून को बदलने का। और इसी संदर्भ में मैं वेणुगोपाल जी की बात का जवाब देना चाहती हूं कि जब इन्होंने दादरी के इंसिडेंट को बार बार कोट किया, दादरी के इंसिडेंट में आपको समझना होगा कि हम एक क्वाज़ाई फेडरल स्ट्रक्चर है, और उस क्वाज़ाई फेडरल स्ट्रक्चर के तहत राज्यों के अपने कानून हैं और केंद्र के अपने कानून हैं। और जब राज्यों को प्रमुखता से अपने कानून का पालन करना है, अगर किसी राज्य के अंदर उस कानून को तोड़ा गया तो क्या ये उस सरकार की जिम्मेवारी है या केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है? और उस कानून में दो कानूनों का उल्लंघन हुआ। अगर पहला कानून काउ स्लॉटर को बैन करता है तो क्या उस कानून का उल्लंघन होना चाहिए? और अगर किसी ने गौ हत्या की और उस पे लोग भड़के और उसके बाद किसी का मर्डर होता है तो वो मर्डर है, उसको आप सियासत की निगाह से मत देखिए, क्योंकि काउ स्लॉटर पर बैठिए और सुनने की हिम्मत रखिए, आप। आज मैं आपको इस देश के तथ्य बताना चाहती हूँ। आज मैं आपको तथ्य बताना चाहती हूँ कि 2006 में भी काउ स्लॉटर के ऊपर दंगे हुए थे, 2013 में भी काउ स्लॉटर के ऊपर दंगे हुए थे। ये भी इस देश का इतिहास है, और इस देश के इतिहास के मुताबिक आप किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप चाहते हैं कि काउ स्लॉटर ना हो तो अपने राज्य का कानून बदलिए, और ये खास तौर पे कांग्रेस के लिए है जो कर्नाटका के अंदर लगातार इस तरीके की हरकत कर रही है। वो कर्नाटका के अंदर इस कानून को बदलने की हिम्मत रख के बदल के लेके आए। इस देश के अंदर जब दादरी जैसा हत्याकांड होता है और कानून व्यवस्था पर शक की निगाह जाती है और देखा जाता है कि पुलिस की कार्रवाई जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाई और नहीं हुई, वहीं पर दिल्ली में उसी हादसे को दोहराने की कोशिश की जाती है। और केरला हाउस का इंसिडेंट जो बार बार कोट किया,
तो मैं बताना चाहती हूं, केरला हाउस कोई डिप्लोमैटिक एन्क्लेव नहीं है, वो कोई और राज्य नहीं है, वो भारत के एक राज्य का हाउस है और उसके मेन्यू के ऊपर बीफ लिखा गया था और बीफ के अंदर ये तय होगा कि वो बीफ है, गाय का मांस है, किसी और का मांस है, सिर्फ एक फॉरेंसिक जांच के बाद। और जब वेणुगोपाल जी ने कोट किया, बैठिए साहब, आज आप सुन के जाइएगा, आज आप अपनी सहिष्णुता दिखाइए, आज आप सहिष्णुता दिखाएंगे। देश आपको भी देख रहा है, देश आपको भी देख रहा है और मुझे भी देख रहा है। बैठिए और सुनिए, प्रोहिबिशन ऑफ कैटल स्लॉटर एक्ट की जब आप बात करते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ कैटल स्लॉटर एक्ट की जब बात करते हैं, तो आप आईपीसी और सीआरपीसी को नहीं छोड़ सकते, आईपीसी और सीआरपीसी को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आईपीसी के तहत कोई भी ऐसी दुर्घटना जिसमें कानून व्यवस्था का उल्लंघन हो सकता है, प्रिवेंटिव कस्टडी तक में लेने का पुलिस का अधिकार है और उसका अधिकार कैटल प्रोहिबिशन एक्ट नहीं छीन सकता। आईपीसी और सीआरपीसी के माध्यम से पुलिस ने कार्रवाई की, वो सही कार्रवाई थी, क्योंकि अगर पुलिस वो कार्रवाई नहीं करती तो दादरी जैसी दुर्घटना इस राज्य में होती। और साथ ही ये राज्य का कानून था। जब राज्य के मुख्यमंत्री इस पर राजनीति करते हैं, तो मैं उनको कहती हूं कि अगर इस कानून से आपत्ति है तो इस कानून को बदल के दिखाइए, आप कानून को बदलिए। ये राज्य, ये देश कानून से चलता है, ये देश राज्यों के अधिकार से चलता है और ये देश केंद्र के अधिकारों से चलता है। हर बहस को, हर मुद्दे को राजनीति किया जा रहा है ताकि कहीं ना कहीं आप माइनॉरिटी के मन में खौफ पैदा करें। और ये पता चलता है हर चुनाव से पहले इस तरीके का हादसा किया जाता है और हर चुनाव से पहले इस तरीके की बेबुनियादी बातें की जाती हैं। और केरला, मैडम, केरला, I am an independent member of this house and I will express myself under right to freedom. And freedom of speech की जो बात करते हैं, प्लीज take it. freedom of speech की जो बात करते हैं, ये नहीं होता है, देखिए। freedom of speech की जो बात करते हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ, मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि freedom of speech was restricted by the constitutional amendment in 1951 by none other than Reverend, really highly reverential Shri Pandit Nehru. Pandit Jawaharlal Nehru restricted freedom of speech because there are always reasonable restrictions on freedom. And when people from the opposition constantly mocks and play with the sentiment of the community, then I again cite छुरी का, तीर का, तलवार का घाव भरा, छुरी का, तीर का, तलवार का घाव भरा, लगा जो जख्म जबान का, रहा हमेशा दर्द। और ये लगातार जो जख्म इस देश की आत्मीयता पर कर रहे हैं, वही दर्द हम लोगों की जबान से बयां हो रहा है, वही दर्द कि इन द नेम ऑफ सेक्युलरिज्म, in the name of tolerance, the kind of humiliation which has been which the majority community and others are subjected to, who are law-abiding citizens of this country. बहुत सारे लोगों की अमीरी, आपने अपनी बात बोली, बैठिए। बहुत सारे लोगों की अमीरी इस देश की असहिष्णु जनता से हुई है और वो लोग 13 states, and I'm coming back to the data of West Bengal and Kerala because two of my friends have quoted certain data. So one data is in Kerala, 2010,
Professor T.J. Joseph. And Professor T.J. Joseph's hand was chopped off for making a question paper. No award Vapsi. No award Vapsi happened at that time. On 1st December 1999, Jay Krishnan, Master Jay Krishnan was killed in front of his students. And Mokeri East School, and it was not less than Kalburgi or Pansare's case. And in case of Kalburgi and in case of Pansare, let me remind my friends that this happened when Congress was in power in those states. And now also, they continue to be in the state, in the Karnataka. Maharashtra, Dabolkar. Speaker ma'am, Award Vapsi Brigade never actually saw the point. And the point is exactly opposite of what they are protesting for. Be it the carnage of Sikhs in 1984, Nellie, Meerut, Hashimpura, and the list goes on. Bhagalpur, Malyana, I can just go on. I can just go on and on. Muzaffarnagar, recently, large scale of communal violence has been engineered by the non-BJP governments. And the Congress, the left and the Samajwadi and all others are very, very tolerant to all these incidents. And their tolerance is so very well enhanced and spoken about, because on one side they wrote about and spoke about Dadri, but they did not care to even mention Mood Bidri. They did not care to mention that there is a mafia in this country which is acting against the law of the land. And if people complain to the police, they get killed. This is a law-abiding society. How will the government run? How will the society run? It will run on the basis of the law this constitution provides. West Bengal, I'm coming, sir. I'll just come to West Bengal also. Law and order is a state subject, and it is solely the state's responsibility. Sir, please show some tolerance to me. Show some tolerance to me. And I'm showing some, and I'm going to cite 66A. I'm going to cite 66A. Remember, you brought 66A, IT Act. People for making statement and tweet on the Twitter. And the press code also was brought by the then Prime Minister Shri Rajiv Gandhi. These are all instances of tolerance. And I am not done. I personally have a grudge, and I'm going to make it very personal today. Shah Commission report was a report against the breakdown of law and order machinery. And people remember Justice Shah very well, but the prosecutor in that case happened to be my father-in-law. And the reports were burnt. How those peoples were haunted, we are a witness, a personal witness to all that. How even the gas cylinders from the house were taken away. And they talk about tolerance. They talk about, and they are going to teach tolerance to this side. I am really, really surprised. Faridabad incidents was quoted by my friends. In the name of Dalits, Honorable Speaker, ma'am, before whatever happened and whatever is the law and order situation, a contrary report has already come, and I'm sure Mr. Home Minister will refer to that it was a case of personal animosity, and that's how those allegations were made. Because there were FIRs
There were FIRs pending against both sides, and they had fought against each other over a period of time, and a case of personal animosity was sought to be made into a case of caste violence. I think there can be no bigger crime than that, because you're breaking the fabric of this country. And in Faridabad incidents, and especially people from Haryana will remember, Mirchpur, Gohana, I can just go on and on. At least 10 incidents which happened in last 4 years, 5 years. So this is what I have to state on violence. Then another, I am not justifying. I am the last one to justify. I'm saying it's a law and order issue and condemnable, and a strict action has to be taken against anyone who breaks law and order. And that is what my statement is. I will handle that also, sir. Show patience, please. Because we have limited time. I have to deal with every argument which has been brought. And you are violating, and you are very violent in your, because violence is not just physical. Violence is even verbal. And I can appreciate those who twist the statement to mean something which was not so stated. Is violence to the language. And violence to language needs to be exhibited and needs to be spoken about. People like me will say this country has respect even for dogs. Because this country, maximum people believe in non-violence and are temperamentally. I mean, I have nothing against those who eat non-vegetarian food. Absolutely not. It's a personal choice. But most people believe, whether it's a dog or it's an ant, life is precious and life needs to be respected. And no violence either to the environment, to the rivers, to the live and non-living objects needs to be maintained. That is the philosophy of ahimsa. And the philosophy of ahimsa seems to be violated when people make such rabid statements. And such rabid statements need to be condemned, and such twisting of the words also needs to be condemned. Very well. Ma'am, I was going through the records, and in the records, I came across Salman Rushdie. Some words have been spoken about Salman Rushdie. The banning happened in 80s. Who was in power, I need not say. And in 2012, Rushdie was not even allowed to appear in a video conference. In a video conference in Jaipur. In the year, Madam Speaker, 55,408 लोग मारे गए 1977 से 2009 के बीच वेस्ट बंगाल के अंदर। वेस्ट बंगाल में किसका राज था और किस तरीके के ये सेक्युलर मर्डर्स थे, इस पर भी कुछ रोशनी डलनी चाहिए, क्योंकि सेक्युलरिज्म के नाम पर मर्डर्स होते रहेंगे इस देश में, लोगों को बांटा काटा छाटा जाएगा और लोग विकास की, पढ़ाई की, महिला सुरक्षा की, भोजन की, मैल न्यूट्रिशन की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि ठीक चुनाव से पहले इस तरीके की खबरें अखबारों में, किताबों में डाली जाएगी और उसके ठीक 2 महीने बाद या कुछ समय बाद जब तक तहकीकात होगी एक छोटी सी अपॉलॉजी आ जाएगी और तब तक वो मुद्दा तो भुनाया जा चुका होगा। ये इस देश की असलियत है। इस देश की असलियत है कि भारतीय संविधान के मुताबिक जो क्वाज़ाई फेडरल स्ट्रक्चर की बात मैंने कही थी, उसी क्वाज़ाई फेडरल स्ट्रक्चर में 13 राज्य हैं जहां पर कांग्रेस पावर में थी और जो कैटल स्लॉटर के खिलाफ जो कानून है वो लाया गया और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी मिल्च और ड्राउट एनिमल्स के खिलाफ बात कही गई। उसका जो इकोनॉमिक एंगल है मैं उसको मैल न्यूट्रिशन से जोड़ना चाहती हूं। जब किसी बच्चे को
बढ़ती उम्र में खुराक की जरूरत होती है, तो उसका जो प्राइमरी सोर्स है कैल्शियम का, प्रोटीन का, वो गाय, भैंस और मिल्क एनिमल्स का दूध ही रहता है। और वो किसी के धर्म को लेकर नहीं उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन करता, और उसी इकोनॉमी का हिस्सा है कि एक गरीब देश जहां पर गरीबी है, भूखमरी है, मैल न्यूट्रिशन है और भोजन की व्यवस्था अपने आप में बहुत दुश्वार है, और लगातार जो परिवार है उनके खेती के जो प्लॉट साइज है वो छोटा होता जा रहा है, और लगातार उसमें फर्टिलाइजर्स डालने के लिए आपका खर्चा खेती का कहीं बढ़ता जा रहा है। परिवार में पुरुष, खासतौर पे क्योंकि बिहार का उदाहरण बार बार दिया जा रहा था, पुरुष काम करने के लिए राज्य से बाहर आ जाते हैं और महिलाएं पीछे अकेली रह जाती हैं बच्चों की देखभाल करने के लिए। तो अगर घर में गाय, भैंस, कोई जानवर हो तो उसके गोबर से खाद का इस्तेमाल, गैस, गोबर गैस का चूल्हा और बच्चों के लिए दूध, घी, मक्खन का इंतजाम किया जा सकता है। और ये सीधे तौर पर एग्रो इकोनॉमी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये मैं नॉन रिलीजियस, इररिलीजियस लोगों के लिए कह रही हूँ। जो धर्म में एक तरह धर्म के आधार पर इस को मान्यता देते हैं तो वो धर्म के आधार पर दे ले, लेकिन जो धर्म के आधार पर इसको मान्यता नहीं देना चाहते, सोच उसकी कहीं ना कहीं एक सुखमय जीवन की है, खास तौर पे किसी भी गरीब परिवार के लिए। और उसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्योंकि जब संविधान पर भाषण हुआ तो लगातार डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जिक्र इस सदन में हुआ और कहा गया कि किस तरीके से वो विजन का डॉक्यूमेंट है कि राज्य को इस दिशा में आगे बढ़ना है। वो कामयाब हो या ना हो, लेकिन इस दिशा में हमको आगे बढ़ना है। और काउस, मिल्क एनिमल्स के खिलाफ जो आवाज है वो हमारे संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कही गई है। उसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु को अगर उसकी धर्म या कम्युनिटी की निगाह से देखा जाता है तो वो बहुत ही सीरियस लॉ एंड ऑर्डर इशू है। और मैं चाहती हूं कि ये सदन इस बात को बहुत गंभीरता से सुने और फेलियर्स को कभी भी कोशिश ना करे कवर करने की। कानून व्यवस्था का उल्लंघन किसी भी ऐसे राज्य के लिए जो धर्म और संविधान में विश्वास रखता है, वो किसी भी देश के लिए सबसे गलत होगा। अगर असहिष्णु माहौल है तो मैं इस बात से सहमत हूं कि वो असहिष्णु माहौल वहां पर मौजूद है जो भारत के बहुत नजदीक के कई ऐसे देश हैं जो कभी भारत का हिस्सा थे। वहां पर चाहे वो अल्पसंख्यकों की गिरता हुआ स्तर हो या संख्या हो, वही अपने आप में बताएगा कि भारत किस तरीके से सहिष्णु मुल्क है, देश है, जिसने लगातार इन बातों को एक साथ रखा। चाहे वो पाकिस्तान का उदाहरण दिया, अफगानिस्तान का उदाहरण दिया, बांग्लादेश का उदाहरण दिया, ये तमाम उदाहरण बिल्कुल सही उदाहरण है। और मैं एक और बात का जिक्र करना चाहती हूं और वो जिक्र है इस देश की मान्यताओं का, अस्मिताओं का। और जब संविधान की बात हुई तो जिक्र में आया कि संविधान जो है वो उसकी शुरुआत होती है आजादी की लड़ाई से और कहीं ना कहीं आजादी की लड़ाई उसमें रिफ्लेक्ट होती है। मेरा ये मानना है कि इस देश का इतिहास बहुत पुराना है और इस देश का इतिहास 1200 वर्षों से भी अधिक पुराना है। और इस देश के इतिहास में एक परंपरा थी और वो परंपरा थी कि जब भी राज्याभिषेक होता था तो जो भी राजा बनता था वो मुकुट पहनने के वक्त ये कहता था, अहम अदंड दोषी, अदंड दोषी, अदंड दोषी, यानी मैं सबसे ऊपर हूं और मेरे से ऊपर कोई और नहीं है। 3 बार वो ऐसा कहता था। लेकिन जो पुरोहित होता था, राजपुरोहित, वो उसके सर में एक छोटा सा डंडा जिसको कहा जाता है वो 3 बार मारता था और कहता था, धर्मदंड दोषी, धर्मदंड दोषी, धर्मदंड दोषी। यानी आप धर्म से ऊपर नहीं है और आप धर्म आपको भी कंट्रोल करेगा। इस संसद का धर्म यहां का संविधान है और
संविधान और कानून का उल्लंघन करना किसी भी राज्य के हित में नहीं हो सकता। और लगातार इस देश में जो माहौल बनाया जा रहा है वो कानून के विरोध में माहौल बनाया जा रहा है। जिन विषयों को, जैसे मैंने कहा, अमेंडमेंट का अधिकार इस संसद के पास है और अमेंडमेंट का अधिकार किसी राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली के भी पास है। अगर आपको बहस करनी है और ऐसे किसी मुद्दे पर बहस करनी है, आप कानून व्यवस्था के तहत उस कानून व्यवस्था को बदलने के लिए बहस करें और अगर आप बदल सकते हैं तो आप उसको बदलें। लिटरेचर फेस्टिवल्स में जो लोग जाकर इस पर भाषण करते हैं, उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि वो अपने राज्यों को, जो उनकी पार्टी द्वारा शासित राज्य हैं, उनको आदेश करें कानून व्यवस्था को बदलने की। उसी प्रकार से एक मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कहा हिंदी भाषियों को बाहर करो, और हाल ही की बात है। मुझे लगता है कि जो यहां पर भाषण करते हैं भारत के इंटेग्रिटी को लेकर, नेशनल इंटीग्रेशन को लेकर, वो कम से कम भाषाओं के नाम पर लोगों को बांटने का काम ना करें। उसी प्रकार से बिहार का उदाहरण बार बार दिया गया। बिहार का जब उदाहरण बार बार दिया गया, बिहार का उदाहरण जब बार बार दिया गया तो बिहार के उदाहरण में बहारी शब्द का इस्तेमाल हुआ। मुझे लगता है एक भारतीय होने के नाते मैं भारतवर्ष में कहीं भी बहारी नहीं हूं, और क्योंकि मैं बहारी नहीं हूं, ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल करना ही संविधान के खिलाफ है। और जो लोग लगातार संख्यक और अल्पसंख्यकों के बारे में इस देश में बोलते चले आए हैं, मैं उनसे जानना चाहती हूं कि अल्पसंख्यकों की आपने हालत क्या कर दी? क्या उन्हें आपने मुख्य धारा का हिस्सा बनने दिया? क्या उनकी महिलाओं के खिलाफ जब काम हो रहा था, और मैं आपको ये डाटा के साथ बताना चाहती हूं कि 70,000 महिलाएं जब आपको कहती हैं कि हमें, क्योंकि तीन मुख्य दिक्कतें हैं महिलाओं की। पहली दिक्कत है मेंटेनेंस की, दूसरी दिक्कत है शादी का स्टेटस, और जब देश का सर्वप्रिय मुख्य न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, एक कानून व्यवस्था के तहत, संविधान के तहत एक सर्वोपरि न्यायालय एक केस के अंदर एक जजमेंट देता है, और आप एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, और उससे पहले भी उस तरीके के जजमेंट आ चुके हैं। वो पहला जजमेंट नहीं था, तीसरा जजमेंट था। ऐसे जजमेंट्स के बाद क्या इस संसद ने, जो उस समय थी, उसने देश के कानून को फेल नहीं किया? जब उन महिलाओं को सेक्युलरिज्म के नाम पर जस्टिस नहीं दिया और एक कानून लेकर आए जिसमें ऐसे जजमेंट की भी अनदेखी की गई, और ऐसे जजमेंट की अनदेखी की गई, और जो लोग, मैं महिलाओं के नाम पर बोल रही हूं साहब, क्योंकि मुझे लगता है इस देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी इस देश की महिलाएं हैं। इस देश की महिलाएं सब, जितने आपके सर्वोच्च पद हो, चाहे इकोनॉमिक डाटा हो, चाहे पढ़ाई लिखाई का डाटा हो, चाहे न्यूट्रिशन का डाटा हो, सब जगह इन सब चीजों से दूर हैं, और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हर समाज ने की है। और इसलिए when it comes to freedom of expression, Honorable Speaker, ma'am, I would like to highlight the government has banned 35 books throughout the country between 1950 and 2014. Out of these 31 books, bans were enacted by the Congress government. The only book banned after this government came to power was done on the orders of a Pune court. If the banning of the book is done to preserve harmony and public order, it will still be justified, but instances like
banning M.O. Mathai's book, Reminiscence of the Nehru Age, Xavier Moro's Red Sari, Arthur Koestler's The Lotus and the Robert, Salman Rushdie's The Moor's Last Sigh show that some bans were inspired to preserve the image of dynasty. Something that is purely an act of silencing criticism. So it may be available, but government did order banning, and Nehru by Fulpert was also banned, and I would want some people to read it. Opposition has clearly underestimated the acumen of this country, and if they believe that by creating rhetoric of intolerance, they will succeed in making this country intolerant, the answer is no. The answer is, we are people who believe in logic and reason, and it is through logic and reason that they will be defeated, and it is through data and statistics that they need to be shown the mirror. जो आईना कह रहे थे भेजने की बात, मैंने आज उनको आईना जरूर दिखाया है, और चाहूंगी कि वो उस आईने में भी देखें और गिरेबान में भी झांक कर देखें और देखें इस देश ने आपको क्या क्या दिया और आपने सहिष्णुता से कैसे कैसे खिलवाड़ किया और लगातार just for securing political agendas, a few things shall not be tolerated. By दिल्ली और बिहार, दिल्ली का भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो बिहार में दादरी के इंसिडेंट्स को लेकर हुआ, ठीक उसी प्रकार से दिल्ली के चुनाव के ठीक पहले चर्च अटैक शुरू किया गया। और जब तथ्य सामने आए तो सामने आया कि चर्च से अधिक मंदिरों पर अटैक हुए थे और मस्जिदों पर हुए थे। लेकिन इस तरीके की हरकतें लगातार देश के ताने बाने के साथ खिलवाड़ है, और यही बात मैं अपने भारत के देशवासियों को बताना चाहती हूं कि आप इस खिलवाड़ का शिकार ना हो, और इस खिलवाड़ का शिकार इसलिए ना हो क्योंकि अगर आप 80 और 90 के दशक को देखें तो आप पाएंगे कि 50,000 लोग 80 और 90 के दशक में पंजाब में मारे गए, और उस समय कौन सी सरकार थी आप सभी जानते हैं। अमृतसर के अंदर अभी हाल ही में सो कॉल्ड सरबत खालसा का जलसा हुआ, और उस जलसे के अंदर स्टेज के ऊपर से खालिस्तान की मांग की गई। उस समय स्टेज पर कौन कौन लोग मौजूद थे, ये मैं जानना चाहती हूँ कांग्रेस के लोगों से। मैं जानना चाहती हूँ कि जब इस तरीके की हरकत हुई तो उनके प्रदेश के नेतृत्व ने साफ शब्दों में कहा कि इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। क्या इस देश में जो भाषण देते हैं नेशनल इंटीग्रेशन का, वो पूछेंगे नहीं अपने ऑफिस बेयरर से या एमएलए से कि आपके सामने जब खालिस्तान की मांग की गई तो आप वहां बैठे क्यों रहे और आपने उस जलसे में पार्टिसिपेट कैसे किया? इस देश ने खून देखा है, बहुत लोगों के बलिदान के बाद ये देश और ये आजादी हमें मिली है। और जब राजनीतिज्ञ इन सब विषयों से देश को भ्रमित करना चाहते हैं और राज्य के आधार पर इस पर रणनीति बनाना चाहते हैं, तो मैं उस राज्य की जनता से, इस देश के नागरिकों से, उन सब लोगों से जिनको संविधान और कानून में विश्वास है, कहूंगी कि हाथ जोड़कर करबद्ध आपसे विनती है कि कानून के तहत जो भी उस राज्य का नियम है, कृपया करके उसका पालन कीजिए या उस कानून को बदलने की हिम्मत रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री दिनेश त्रिवेदी जी।